very warm welcome to all the participants and the team host of Franchise Apply, and special thanks to Ashok ji for organizing this charismatic webinar, which can be a great help for the upcoming educationists and the investors for this very responsive business, the preschool business field. So we'll start with today's webinar, and I hope I may be able to explain you each and every part and each and every detail and speciality of Little Universe Preschool. I will try my best because there's a time constant, so we have to take care of the timings also. So I just start. Let me introduce myself. I'm Dr. Nidhi Singh Tak, co-founder and director for Little Universe Preschool Franchise, and founder director for 4 of our other educational companies. And those companies are Petals Knowledge Park, Petals Teaching Aids, Petals Distributors, and Edu House India Private Limited. And let me tell you, we are into this field of education since 1996. And in these much years, we have established over, I think, 7,500 schools across nation and even abroad also. Basically, the functions of our other 4 companies, other than Little Universe Preschool brand, which recently we have launched, and we have a huge target because we are giving very special things and products with our franchisee. And our target have been already explained by Ashok ji, that this year we are targeting, our target is for 50 schools all over nation, 50 Little Universe Preschool franchisee all over nation. So as I was telling you that already we have developed, we are into school developing business, and we have developed more than 7,500 schools pan-India level. And in today's webinar, I would just like to focus on few of the points, and the program highlights goes like this, like why we should opt or we should go for a preschool business, and learning methods, what can be the special and lucrative learning methods, and about the new education policy, which is very important for our preschool sector. And the most important, that is quality education and the latest curriculum. And last but not the least, how to run a successful school, because that is a very important part. आपको सब लोग बता देते हैं कि आपको हमारे अभी यहाँ पे इंडिया में बहुत सारे फ्रेंचाइज अवेलेबल है, and all are doing very good. I congratulate all of them, and I am in touch with all of them as their developers, you can say, because 1996 से हम इस बिजनेस में हैं, तो हम लोग सभी जो भी ओनर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, सभी ऑलरेडी जो चेन ऑफ स्कूल्स चल रहे हैं, we know them personally, and definitely they are doing very good business, and they are giving a lot of good products and good curriculum to all their franchisees. Now let me talk about our brand, what we will provide you specially. So I'll just start with, according to the sequence, I'll just let you know first why we should go for preschool business. There are a few points to be focused why preschool business is a very responsive business, because it has a very low investment level. You have to invest a low amount and you get high returns in very short time, which is the major important point why people go for a franchise, preschool franchise. And undoubtedly it is a noble profession. You're working for society, you are giving society, you are giving the early childhood the best what you can give. And अभी जो हमारा इंडिया का जो पॉपुलेशन है,
उसके अकॉर्डिंग, एंड इट्स गोइंग टू इंक्रीज डे बाय डे, एंड जितनी पॉपुलेशन हमारी है उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो अच्छे स्कूल्स बहुत सारे हैं, बट अच्छे स्कूल्स कितने हैं जो वाकई में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो दैट इज द पॉइंट टू बी फोकस्ड कि स्कूल्स हर गली में है, हर कॉलोनी में है, हर रेजिडेंशियल एरियाज में है, हर एक टाउनशिप में है, बट उनका जो गिविंग लेवल है, लाइक क्वालिटी लेवल है, या जो उनका फाउंडेशन लेवल है वो कितना अच्छा है, बेसिकली उस पर फोकस हमको करना है। सो इसके अलावा पॉपुलेशन के हिसाब से और नीड के हिसाब से जितने भी हमारे अर्बन एरियाज हैं या मेट्रो सिटीज है या सेमी अर्बन एरियाज हैं या छोटे गांव है या शहर है, सभी में प्री स्कूल्स की डिमांड बहुत ज्यादा है। बिकॉज अब पेरेंट्स अवेयर हो चुके हैं कि अर्ली ईयर्स जो होते हैं इसमें बच्चे का दिमाग जो है, the brain of child develops 90% of brain of child develops in like till the age of 6। अगर हमने उनको इस एज के अंदर एक अच्छे प्री स्कूल में नहीं डाला और ये समझा कि अभी बच्चा छोटा है, थोड़ा और टाइम इसको देते हैं, और तो उसके लिए बहुत बड़ा लॉस है, एंड इनडायरेक्टली वो पेरेंट्स के लिए भी बहुत बड़ा लॉस है, क्योंकि उसका बच्चे का फ्यूचर डिपेंड करता है अर्ली चाइल्डहुड फाउंडेशन ईयर्स के ऊपर, उसका कंप्लीट फ्यूचर डिपेंड करता है। तो अब और ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, दैट इज लाइक उसके लिए मैं बहुत थैंक्स देती हूँ उनको जिन्होंने अभी ये पॉलिसी बनाई है, बिकॉज इसमें उन्होंने जो प्री स्कूल एजुकेशन है वो मैंडेटरी कर दिया है। लाइक पहले प्री स्कूल एजुकेशन के लिए पे इतना फोकस नहीं होता था गवर्नमेंट का भी, बट नाउ गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी अभी न्यू बनाई है उसमें प्री स्कूल और अर्ली एजुकेशन मैंडेटरी हो गया है, हर गांव में, हर शहर में, हर सिटी में, सभी जगह पर। तो जो भी इसमें अब लीड लेता है प्री स्कूल बिजनेस में, वो काफी सक्सेसफुली आगे बढ़ने वाले हैं। बिकॉज अगर मैं कोविड टाइम की बात करूं तो कोविड टाइम में जितने भी स्कूल्स चल रहे थे, या तो जो रेंटल जगह में थे या जिन्होंने फ्रेश स्टार्ट किया था, तो उनके लिए वो बहुत ही पेनफुल फेज था, और उसकी वजह से उन्होंने काफी लॉस उठाया, एंड दे आर नॉट एबल टू कंटिन्यू बिकॉज ऑफ दिस कोविड सिचुएशन। एंड उनको पूरा अपने सेटअप्स वाइंड अप करें। बहुत सारे स्कूल्स हैं जिन्होंने, बड़े बड़े स्कूल्स मैं जानती हूँ जिन्होंने अपने टोटली स्कूल्स को मतलब पूरा वाइंड अप कर दिया है कंप्लीटली। बट नाउ वी हैव टू कम ओवरकम फ्रॉम ऑल दिस काइंड ऑफ सिचुएशन, बिकॉज हमने जो देखना था, जो चैलेंजेस हमारे सामने आए वो हमने फेस किए। बट अब जो चैलेंजेस हैं उसके लिए वी कांट वेट कि हम ऑलरेडी 2 साल हम पीछे चले गए हैं। तो अब जो आने वाला टाइम है, एंड स्पेशली ठीक है ऑनलाइन लर्निंग हो रही है बच्चों के लिए, बट वो हो रही है हायर क्लासेस के लिए या मिडिल क्लासेस के लिए। बट छोटे बच्चों के लिए क्या हो रहा है? छोटे बच्चों के लिए कुछ नहीं हो पा रहा है, बिकॉज उनके लिए फैसिलिटी, दे कांट सिट इन फ्रंट ऑफ कंप्यूटर के सामने, या ऑनलाइन लर्निंग के लिए दे आर नॉट दैट केपेबल। एंड ऑनलाइन लर्निंग जो रिसर्च के अकॉर्डिंग, पूरा वर्ल्ड रिसर्च के हिसाब से मैं बताऊं तो ऑनलाइन लर्निंग टिल एज ऑफ 9 इज अ स्लो पॉइजन। सो ऑफलाइन स्कूल्स तो खुलने ही खुलने हैं, तो क्यों ना हम अभी ये जो हमारे पास टाइम है हम अपना खुद का होमवर्क कर लें, एंड वी स्टार्ट आवर स्कूल एक करेक्ट टाइम पे स्टार्ट करें, तो हमारा पूरा प्लेटफॉर्म अभी बन जाएगा, एंड आने वाले टाइम में हम उसको सक्सेसफुली रन कर सकते हैं। सो नाउ ये मैंने आपको बताया कि व्हाई प्री स्कूल बिजनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ आई कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट लर्निंग मेथड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सर चलिए आपने कोई भी फ्रेंचाइजी ली है, आपने स्कूल खोल लिया है, बट उसके अंदर आप लर्निंग प्रोसीजर क्या अपना रहे हैं? आपको जो स्कूल की फ्रेंचाइजी ली है वो आपको क्या दे रहे हैं, एंड व्हाट द डिफरेंस बिटवीन लिटिल यूनिवर्स प्री स्कूल एंड अदर्स प्री स्कूल? So I'll talk about my brand. I will talk about my dream project, that is Little Universe Preschool.
को इतना फैलाना है कि पूरे नॉट ओनली इन इंडिया बट अब्रॉड में भी मैं इसको स्टार्ट करना चाहती हूँ इन डिफरेंट कंट्रीज। सो जो लर्निंग मेथड्स हैं, जो अभी लर्निंग मेथड्स चल रहे हैं मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में, वो बेसिकली मेरे हिसाब से, या आप सभी भी जानते हैं जिनके बच्चे छोटे हैं या जो प्री स्कूल बिजनेस में आना चाहते हैं, तो उन्होंने डेफिनेटली अपना होमवर्क किया है। मोस्ट ऑफ द स्कूल्स जो प्री स्कूल्स हैं उन्होंने अपने एफबी पेजेस बना रखे हैं, वो अपने सोशल मीडियाज पे हैं या इंस्टा पे हैं। तो स्कूल का सक्सेसफुली रन करना आपके सोशल मीडिया एडवर्टाइजमेंट से, या आपके एफबी पेज से, या आपके जो आप टीचर्स को यूट्यूब पे जा जाके और एक्टिविटीज कलेक्ट कराकर और उनसे बच्चों के साथ करवा के, आई थिंक सिर्फ इन सब चीजों से एक अच्छा स्कूल रन नहीं कर सकते हैं। आई विल जस्ट से दिस इज पॉम्प एंड शो। ठीक है, पॉम्प एंड शो होना चाहिए बट टिल थोड़ा लिमिट तक। बिकॉज अगर हमने पूरा ही उसको एकदम सिर्फ पॉम्प एंड शो पे ही काम करा एंड बेसिक जो फाउंडेशन है, हमने बच्चों को 10 एक्टिविटीज करवा दी, बट उन एक्टिविटीज के पीछे मोटो क्या है? बच्चे का फोटो आ गया, पेरेंट खुश हो गया कि हाँ मेरे बच्चे का फोटो आ गया, बट उस बच्चे ने उस एक्टिविटी में सीखा क्या है? व्हाट इज द मोटो बिहाइंड दैट एक्टिविटी? एंड उस एक्टिविटी से बच्चे को क्या गेन हो रहा है? तो बेसिकली लिटिल यूनिवर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि हम जो भी करिकुलम देंगे या जो भी लर्निंग मेथड्स प्रोवाइड करेंगे वो बच्चों के हिसाब से होगा, बिकॉज ईच चाइल्ड इज अ यूनिक चाइल्ड। हर एक बच्चे का जो इंटरेस्ट लेवल है और जो उसके स्किल्स हैं वो भी एक डिफरेंट लेवल के होते हैं। किसी का ऑडिटरी स्किल बहुत अच्छा होता है, किसी का विजुअल स्किल बहुत अच्छा होता है, किसी का काइनेस्थेटिक मीन्स जो टच करके और फील करके बच्चा जल्दी सीखता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम हर एक बच्चे पे पर्सनली वर्क करते हैं। स्टार्टिंग जब वो बच्चा एडमिट होता है स्कूल में, हम उसको पर्सनल लेवल पे हम उसको टेस्टिंग करते हैं, हम उसके साथ काम करते हैं और उसकी हम यूनिकनेस निकाल कर उसके साथ हम उसी तरीके से काम करते हैं जिससे कि वो बेस्ट तरीके से गेन कर सके एंड उस चीज को ग्रास्प कर सके। क्योंकि अर्ली इयर्स में बच्चे का जो कैपेबिलिटी होती है ग्रास्पिंग की वो बहुत बहुत अच्छी होती है। सो दीज आर वेरी वेरी क्रूशियल ईयर्स। तो इस पे हमको लर्निंग एंड टीचिंग मेथड्स पे सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए। नाउ लिटिल यूनिवर्स और क्या चीज आपको देगा रिलेटेड टू लर्निंग एंड टीचिंग मेथड्स? क्या स्पेशल देगा? दे तो सब लोग रहे हैं, बहुत कुछ दे रहे हैं, बट जो लिटिल यूनिवर्स प्री स्कूल का कॉन्सेप्ट है, दैट इज लाइक आई वांट टू एनहांस इंडियन मॉरल वैल्यूज विद इन किड्स। बिकॉज क्या है कि वेस्टर्नाइजेशन के अंदर, ठीक है, हमको अलग अलग लैंग्वेजेस आने चाहिए, आई अप्रिशिएट, बट हमारा जो इंडियन कल्चर है, जो हमारी बेसिक रूट्स हैं, उसको उससे अगर हम जुड़े रहकर हम इंटरनेशनल ग्रूम अप करें चाइल्ड को, दैट इज अ मच बेटर वे टू ग्रूम अ चाइल्ड। इंस्टेड कि उसको सिर्फ हम पूरा क्रीमी क्रीमी चीजें दिखाकर एंड एवरीथिंग लाइक इन अ वेरी गुड मैनर, एंड उनको कुछ भी लाइक थोड़ा सा उनको दे हैव टू स्ट्रगल फॉर गुड थिंग्स। आजकल क्या हो रहा है स्कूल में, ऑलरेडी उनको इतना सब कुछ इतना अच्छा एटमॉस्फेयर मिलता है। एटमॉस्फेयर हम लोग भी देंगे, एसी एटमॉस्फेयर या और दूसरे जो फैसिलिटीज होते हैं। आई विल नॉट से दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, येस दे आर इंपॉर्टेंट। जो घर में बच्चे को चाहिए वो स्कूल में भी चाहिए, तो वो एक सेकेंडरी चीज है। बट स्कूल पेरेंट्स क्यों भेज रहे हैं बच्चे को? उनका बेसिक डेवलपमेंट करने के लिए, उनका ओवरऑल ग्रूम अप करने के लिए। सो ओवरऑल ग्रूमिंग पे हमारा फोकस लिटिल यूनिवर्स प्री स्कूल का फोकस रहेगा, बेसिकली उनके इंडियन मॉरल वैल्यूज पे प्लस, और वो अपने रूट्स के साथ कनेक्टेड रहें। And we will provide with all the facilities, the latest facilities, what all we are giving to kids at home will be given in schools also. And जो हमारा ancient culture है उसके बारे में भी हम बच्चों को पूरा नॉलेज देंगे, और हम अपने बच्चों के लिए डेज फिक्स करेंगे कि किस टाइम में उनको क्या करना है, किस टाइम में टीचर को उनको क्या, ये पूरा डे वाइज करिकुलम हमारा आजकल ये कॉमन चीज है, मोस्टली सब स्कूल्स में होता है। बट हम लोगों का जो डे वाइज करिकुलम है
वो बेस्ड होगा मिक्स ऑफ इंटरनेशनल करिकुलम एंड आर इंडियन मॉरल वैल्यूज. सो दिस इज अबाउट the learning methods and what Little Universe will give you. Just a minute. Yeah. So now I will just talk about one more important thing about curriculum. बेसिक जो करिकुलम होता है स्कूल के लिए वो एक हार्ट मैं बोलूंगी हार्ट होता है, लाइफ लाइन होता है स्कूल का बच्चों के लिए. और जो बेसिक करिकुलम होता है वो बेसिकली 9 स्किल्स के ऊपर रहता है. एंड दोज 9 स्किल्स आर आई वुड से लाइक फाइन मोटर, ग्रॉस मोटर स्किल्स, लॉजिकल एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, then creative skills, listening and speaking skills, then physical fitness skills, general awareness skills, social skills and visual skills. तो हम लोगों का जो करिकुलम है वो कंप्लीटली इन 9 स्किल्स को पूरा कवर करता है हर तरीके से. और जैसा कि मैंने पहले बोला, every child is a unique child and we just work on child for few days and we diagnose their capability and their weakness also, so that we can enhance their capability in a much better way and we can overcome their weaknesses in what they are lacking. That is known as cognitive analysis. So we are doing cognitive analysis also for kids, जिससे कि हमको अर्ली ईयर्स में पता चल जाता है कि बच्चे की क्या स्ट्रेंथ है और बच्चे की क्या वीकनेस है. तो हम उसके अकॉर्डिंग हम पेरेंट्स को भी गाइड करते हैं और स्कूल में तो हम उसके अकॉर्डिंग काम करते ही हैं. जस्ट वेट अ मिनट, मेरा एक्चुअली लैपटॉप में कुछ प्रॉब्लम हुआ है. जस्ट अ सेकेंड. Yeah. Now I will just explain you what is the USP. USP means the why you should go for Little Universe preschool franchisee. There are a lot many other franchises in the market, the developed one I will say, and they are doing very good. But why only Little Universe preschool? So let me tell you, because we are into this field of education for more than, I think you can say 28 years or 25 years. So we have studied a lot about this, and the things which we are going to provide and which we have studied that most of the schools are lacking, most of the preschools are lacking. जो प्री स्कूल्स में देते ही नहीं है, जबकि इन अर्ली ईयर्स में वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चों के लिए. तो वो चीज है, हम लोगों का जो करिकुलम है वो बेस्ड होगा, जैसे कि मैंने आपको 9 स्किल्स बोला, तो उसको मैं थोड़ा सा एलैबोरेट करती हूँ, जो कि मतलब कहीं और आपको नहीं मिलेगा. दैट इज वील बी हैविंग स्पोर्ट्स करिकुलम. एक एकेडमिक करिकुलम सब फॉलो करते हैं, बट स्पोर्ट्स करिकुलम नोबडी फॉलोज. सो एक हेल्दी बच्चे के लिए, जो कि मेंटली भी हेल्दी हो और फिजिकली भी हेल्दी हो, तो उनके लिए स्पोर्ट्स करिकुलम बहुत जरूरी है प्री स्कूल्स के लिए. तो वो लिटिल यूनिवर्स प्रोवाइड करेगा फॉर होल ईयर. एंड मील प्लान्स हम लोग प्रोवाइड करेंगे. लाइक वी विल जस्ट गाइड यू कि बच्चों को क्या आपको लंच बॉक्स में भेजना है और क्या बच्चों को नीड है, एंड वो भी उनके पर्सनल टेस्टिंग के बाद, ताकि बच्चा मेंटली भी डेवलप करे और फिजिकली भी डेवलप करे. बिकॉज लाइक healthy child physically and mentally going to be a great citizen of India, great future generation हमारी जो होगी, उस पे अगर हम लोग इनिशियल ईयर्स में ही फोकस करेंगे तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. देन स्पोर्ट्स करिकुलम के अलावा लेट मी टेल यू, ये एक्चुअली पीपीटी में क्या है, कुछ लिमिटेड चीजें दे होती, तो आई डोंट वांट टू बाउंड माई सेल्फ टू द पीपीटी. इट्स in front of you. You are most welcome to go through the PPT. But other than this, they are already there with us. But what extra we are providing, what all special things which you won't be able to focus. Because क्या होता है कि ये थोड़ी अनकॉमन चीजें हैं जो कि आज बहुत सारी कंट्रीज में स्टार्ट हो गई है, बट इंडिया इज लैकिंग. सो फर्स्ट मैंने बोला स्पोर्ट्स करिकुलम,
we'll be providing sports curriculum for whole year for all the age groups, even for playgroup, nursery, KG and prep. And the next comes the meal plans. Okay, and most important and again very important, that is space education. जैसा कि हमारा नाम है लिटिल यूनिवर्स, तो लिटिल यूनिवर्स का कनेक्शन ऑब्वियसली स्पेस के साथ होगा ही होगा. और आप सोचेंगे छोटे बच्चों के लिए स्पेस का क्या मतलब है. लेट मी टेल यू, बच्चे आजकल इतने ज्यादा क्यूरियस हैं हर चीज के लिए, स्पेशली स्पेस एजुकेशन के लिए, बिकॉज इस एज ग्रुप के लिए जो हमने प्लान किया है अर्ली ईयर्स के लिए स्पेस एजुकेशन, दैट इज रियली कमेंडेबल. जब आप लिटिल यूनिवर्स के फ्रेंचाइज में आएंगे, लिटिल यूनिवर्स के वर्ल्ड में एंटर करेंगे, आप देखेंगे कि बच्चों को हम लोग स्पेस एजुकेशन कैसे दे रहे हैं, उनको हम लोग स्पोर्ट्स करिकुलम कैसे दे रहे हैं, उनको हम मील प्लान्स कैसे दे रहे हैं, एंड उनको हम इंडियन वैल्यूज के साथ हम लोग कैसे उनको रूट लेवल पे डेवलप कर रहे हैं, सो दैट वो वर्ल्ड में कहीं भी जाए बड़े होकर, बट दे शुड बी ऑलवेज कनेक्टेड टू देयर रूट्स. उनमें इंडियन वैल्यूज बहुत जरूरी है. लेट मी टेल यू, बिकॉज हमारे बहुत सारे स्कूल्स हैं जो अब्रॉड में भी हमने डेवलप करे हैं, तो उन्होंने क्या किया है, दे आर फॉलोइंग आवर कल्चर, यू नो. वो मतलब उनका लो सिटिंग एंड उनका अलग से योगा टाइम एंड मेडिटेशन एंड ये सब वो अपने बच्चों के साथ कर रहे हैं, वो भी प्री स्कूल के बच्चों के साथ. हमारे इंडिया में भी कर रहे हैं. आई विल नॉट से कि यहाँ इंडिया में नहीं हो रहा है, बट इसको एक प्लान्ड तरीके से करना चाहिए, एंड वो प्लान्ड तरीका है हमारे स्पोर्ट्स करिकुलम में. तो दिस जो मॉरल वैल्यूज हैं वो भी हमारे उस करिकुलम के अंदर आ रहे हैं. एंड मॉरल वैल्यूज में हम जो अपना एंशिएंट कल्चर है, जो हमारे एंशिएंट टाइम में जो इम्पोर्टेंट लोग हुए हैं, जो लीडर्स हुए हैं या जो हीरोज हुए हैं, उनके बारे में जिन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं और पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड वो फेमस है, उनकी बायोग्राफीज से हम उनको मॉरल वैल्यूज देंगे. सो ये एक बहुत ही वाइड पिक्चर है लिटिल यूनिवर्स प्री स्कूल का, जो कि हम देने वाले हैं हमारी फ्रेंचाइज को नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल पे. नाउ लिटिल यूनिवर्स प्री स्कूल provides a specially designed preschool program, which you can call a multiple earning source of, like multiple earning plan. And how it can be a multiple earning plan, because आपने एक बिल्डिंग सपोज लिया है, आपने रेंट आउट किया है या आपका खुद का है, दैट्स वेरी गुड. सो उसको आप मल्टीपल अर्निंग सोर्स में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं. सो मल्टीपल अर्निंग सोर्स में हम लोगों ने इस तरीके से प्लान किया है, उसको वी आर प्रोवाइडिंग द डे केयर फैसिलिटी. डे केयर फैसिलिटी और भी लोग दे रहे हैं, बट अगेन डे केयर फैसिलिटी के साथ हमारा जाएगा स्पोर्ट्स करिकुलम प्लस मील प्लान एंड और दूसरे जो हमारे प्लान्स हैं. उसके अलावा मदर टॉडलर प्रोग्राम. मदर टॉडलर प्रोग्राम वो होता है जो कि प्ले ग्रुप से भी छोटे बच्चे होते हैं, टॉडलर्स लाइक 1.5 years यू कैन से, और अबव 1 year. तो उनको मदर्स लेकर आती है उस एरिया में. वहां पर हम लोग एक सॉफ्ट प्ले एरिया बनाते हैं और उनके लिए टीचिंग टूल्स अलग ही होते हैं. तो वहां पर मदर और बच्चा आकर अपना 1 घंटा, और वो आफ्टर स्कूल, जब हमारा प्री स्कूल ओवर हो जाएगा, then you can have a mother toddler program for young mothers. And उसके लिए भी हमारा पूरा करिकुलम रहता है कि उस एज में बच्चे को क्या क्या सिखाना है. तो फर्स्ट आई टोल्ड यू अबाउट द डे केयर प्लान with sports curriculum and meal plan and moral values, and then I told you about this mother toddler program. Then the next and very important what we are giving, that is after school programs. जब आपका स्कूल ओवर हो जाता है, उसके बाद आपकी स्कूल के जो बच्चे हैं उनके लिए, या और जो दूसरी स्कूल के बच्चे हैं बट उनको उनके स्कूल में वो नहीं मिल पा रहा है, एंड हियर वी आर टारगेटिंग एजेस 3 to 14 years. उनके लिए ये पूरे लिटिल यूनिवर्स क्लब खोल रहा है. डिफरेंट क्लब्स हैं, जो क्लब्स के मैं नाम लेती हूँ अलग अलग से. फर्स्ट इज द स्पेस क्लब. एजेस ऑलरेडी आई हैव मेंशन्ड यू फ्रॉम 3 to 14 years. तो इसमें और भी बच्चे आ सकते हैं, अलग अलग हम बैचेस चला सकते हैं. ये क्लब आपको उस पर भी दिख रहे हैं स्क्रीन पर. देन स्पोर्ट्स क्लब होगा, अलग अलग एज ग्रुप के लिए अलग करिकुलम होगा. देन अगेन मॉरल वैल्यूज क्लब,
जिसमें मैंने आपको पहले बताया पूरा एंशिएंट वैल्यूज एंड सबके बारे में हम सिखाएंगे. देन वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज रीडर्स क्लब. रीडर्स क्लब क्या है, लाइक सॉर्ट ऑफ, बिकॉज ये थोड़ा सा सुनने में स्ट्रेंज लग रहा है कि रीडर्स क्लब भी होता है. आजकल जो ये ब्लू स्क्रीन जो है, ब्लू स्क्रीन मैं कहना चाहूंगी, चाहे आपका मोबाइल हो, चाहे लैपटॉप हो, चाहे आईपैड हो, चाहे आईफोन हो, कुछ भी हो, छोटे बच्चों को आप प्लीज इससे दूर करिए. और लिटिल यूनिवर्स का जो पहला मकसद है वो यही है कि हम बच्चों को एक तो एनिमेशन से हम दूर रखना चाहते हैं. बिकॉज एनिमेशंस, आप डायरेक्ट बच्चों को एनिमेशंस के थ्रू पढ़ाते हैं, बहुत सारे स्कूल्स एनिमेशंस के थ्रू पढ़ा रहे हैं, बट एज अ अर्ली चाइल्डहुड एक्सपर्ट, मैं खुद एक अर्ली चाइल्डहुड एक्सपर्ट हूँ एंड आई एम अ पेरेंटिंग कोच टू. सो उसके अकॉर्डिंग जो मैंने सीखा है और जो मुझे लगता है कि हमको करना चाहिए, वी शुड not at all encourage our kids for laptop or for mobile phones or study online. तो रीडर्स क्लब के लिए हम एक अलग से लाइब्रेरी सेक्शन होगा बच्चों के लिए, वो भी होगा 3 to 14 ईयर्स तक के एज ग्रुप के लिए. और उसमें अलग अलग सेगमेंट्स होंगे कि बच्चों को बुक्स के साथ हम कैसे बॉन्डिंग कैसे बढ़ाएं. और उसके लिए भी हम पेरेंट्स के साथ भी वर्कशॉप्स करेंगे कि वो पेरेंट्स उनको किस तरीके से गाइड कर सकते हैं कि वो अपने मोबाइल से, लैपटॉप से, या उनको जो अभी क्रेज हो गया है उन चीजों से उनको दूर कर सके एंड थोड़े बेटर फॉर्म में, अच्छी चीजों में उनको इन्वॉल्व कर सके. जैसे कि बुक्स के साथ, बुक्स से बहुत दूर होते जा रहे हैं बच्चे, बट यहाँ पे जो हमारा लिटिल यूनिवर्स का रीडर्स क्लब होगा, वहां पे डेफिनेटली बहुत बड़ी हेल्प मिलने वाली है पेरेंट्स को एंड बच्चों को. देन DIY क्लब, दैट इज डू इट योर सेल्फ क्लब. इससे बच्चों में एक क्रिएटिविटी बढ़ती है बेसिकली, लाइक आउट ऑफ बॉक्स जो थिंकिंग होती है, जो कई बार सभी में होती है, बट बच्चों में वो इनिशियल लेवल पे कितनी है, वो इन एक्टिविटीज से पता चलता है. डू इट योरसेल्फ, लाइक पूरा वो लाइक डू इट, लर्न इट, फील इट एंड लर्न इट, दैट वे. तो डू इट योरसेल्फ में बहुत सारी एक्टिविटीज आती हैं जो कि बच्चों के आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग डेवलप करती है एंड कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ाती है बच्चों का. DIY क्लब जो होगा हमारा. देन आजकल रोबोटिक्स भी प्रैक्टिकली कैसे उसको बनाना है, रोबोट को हम लोग प्रैक्टिकल्स करवाएंगे. हम लोग कुछ भी स्क्रीन के थ्रू नहीं करवाएंगे, वी विल डू प्रैक्टिकल्स. ये DIY जो भी है, everything is going to be practical. Nothing is going to be with the special smart board or a laptop या कुछ और कोई डिजिटल मीडिया कुछ हम लोग यूज नहीं करना चाहते लिटिल यूनिवर्स प्री स्कूल में, बिकॉज दैट हैम्पर्स द ग्रोथ ऑफ यंग चाइल्ड ब्रेन. सो रोबोटिक्स क्लब होगा हमारा. देन एज आई टोल्ड यू कि बच्चों को बड़े होकर अलग से पूरा जो उसका बेसिक फाउंडेशन होता है वो 6 साल तक होता है, 9 साल तक होता है. तो उसमें हम उसको जितना सिखा पाएंगे, तो उसमें हम लोग चाहेंगे कि कुछ कुछ लैंग्वेजेस भी उनको सिखाएं. और जैसे कि हमने यहाँ पे जो क्लब एक्टिविटीज है, लिटिल यूनिवर्स क्लब एक्टिविटीज है, उसमें हमने 14 ईयर्स तक एज रखा है. तो वी आर गोइंग टू टीच देम फॉरेन लैंग्वेजेस ऑल्सो. तो हमारी फॉरेन लैंग्वेजेस में भी हम कुछ सेलेक्ट करेंगे जो हम बच्चों को उसमें आगे लेकर आएंगे. तो उनका इंटरेस्ट भी पता चलेगा कि आगे बढ़कर वो क्या करना चाहते हैं. एंड देन योगा एंड जुम्बा क्लासेस नाउ हमारे स्पोर्ट्स करिकुलम का वो होगा पार्ट. देन कोडिंग क्लब भी अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर किड्स. और ये कोडिंग क्लब हम इसका एज रखेंगे अबव 9 ईयर्स, बिकॉज छोटे बच्चों के लिए आई डोंट प्रेफर कि कोडिंग इतने अर्ली एज में सिखाया जाए. तो ये जो आफ्टर स्कूल प्रोग्राम्स हैं, ये सारा मैं आपको बता रही हूँ कि मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग. एक सिर्फ प्री स्कूल स्टार्ट करते हैं आप, बट हाउ यू कैन ग्रो इन मल्टीपल वेज, हाउ यू कैन अर्न मनी इन मल्टीपल वेज. तो उसके लिए ये सारे क्लब फैसिलिटीज हैं. फिर उसके लिए हम लोग का एक हैंड राइटिंग क्लब भी होगा. हैंड राइटिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और यहाँ पे मैं एक छोटा एग्जाम्पल देना चाहूंगी. आई थिंक मैं थोड़ा लेंदी हो रही हूँ, बट आई हैव टू एक्सप्लेन यू जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं हैंड राइटिंग के अंदर. यहाँ पे इंडिया में मोस्टली क्या देखा जाता है, स्कूल्स में जनरली जो होता है प्री स्कूल्स में, कि उनको टीचर को पता है कि आज ये रिटर्न वर्क करना है,
तो वो उनको वो रिटर्न वर्क बस कंप्लीट कराना है। बच्चे ने पेंसिल पकड़ा या बच्चे से लिखा जा रहा है, नहीं लिखा जा रहा, बट बच्चे का हाथ पकड़ के भी लिखा दिया, या बच्चे ने जैसा भी कुछ टेढ़ा मेढ़ा लिखा है वो भी उन्होंने अप्रूव कर दिया, एंड दे जस्ट गिव अ स्टार और अ स्माइलिंग फेस। सो दिस इज रॉन्ग। व्हाई दिस इज रॉन्ग? बिकॉज बच्चे ने गलत लिखा है, अगेन आप उसको स्टार दे रहे हो उस पे, तो उस बच्चे को तो उसने क्या गलती करी कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। he will again repeat the same mistake. So एक पेज की वर्कशीट है, भले बच्चा 4 लाइन लिखे चाहे 5 लाइन्स लिखे, बट एक एक जो वर्ड है या जो लेटर है उसका प्रॉपर होना चाहिए, इरेजिंग हैबिट होनी चाहिए। डोंट डू इट फॉर द सेक कि ये हमको कंप्लीट करवाना है, डू इट फॉर द सेक कि बच्चा सही डायरेक्शन में लिखे, सही हैंडराइटिंग हो उसकी। बिकॉज अगर हमने स्टार्टिंग में उनको गाइड नहीं किया तो हमेशा के लिए बाद में उनको फिर 9 साल के बाद जब राइटिंग क्लासेस हम ज्वाइन करवाएंगे तो दे वोंट बी एबल टू डू दैट। तो स्टार्टिंग लेवल से ही हमको उस पर फोकस करना पड़ेगा। सो हैंड राइटिंग पार्ट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। देन मार्शल आर्ट क्लब विल बी ऑल्सो देयर, एंड अगेन म्यूजिक एंड डांस क्लब तो डेफिनेटली होगा ही, और जिसमें हम लोग पूरे जो हमारे एंशियंट कल्चर से जो हमारे अलग अलग स्टेट वाइज डांसेस हैं वो भी हम उसमें कवर करेंगे, और इंटरेस्ट के हिसाब से बच्चों के। सो नाउ ये तो बात हुई मल्टीपल अर्निंग सोर्सेज की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हम लोग प्री स्कूल स्टार्ट करने जाते हैं। तो लिटिल यूनिवर्स प्री स्कूल के साथ में आपको इतने सारे क्लब्स हैं, और हम इसके साथ अलग अलग क्लब्स हम ज्वाइन करते जाएंगे जैसे जैसे हमारे पास नई चीजें और भी आती है, बिकॉज वी आर वर्किंग ऑन इंटरनेशनल लेवल, एंड इंटरनेशनल लेवल पे जो भी चीज इंट्रोड्यूस होती है डेफिनेटली वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस इन आवर ओन ड्रीम प्रोजेक्ट, दैट इज लिटिल यूनिवर्स प्री स्कूल। Now, what are the advantages of Little Universe preschool franchise? So the first and very important, this is very low cost model with high returns. Why it will be low costing for you? Because as I told you that we are basically school developers, and we are into this field from last 25 years, and we have developed more than 7,500 schools, एंड इनमें से 70% प्री स्कूल्स हमने डेवलप किए हैं। तो हम जो उनके ओनर्स को सामान जाता है, जो उनके चेन जो चलाते हैं, जो ओनर्स को मटेरियल जाता है, तो वो होलसेल कॉस्टिंग पे जाता है, एंड वो फिर आगे अपने हिसाब से, आई डोंट से एनीथिंग फॉर दैट, वो उनका अलग से बिजनेस है। what we are doing, what you are getting benefit out of Little Universe and Petals Knowledge Park, कि आपको जो भी प्रोडक्ट्स मिलेंगे, लाइक वी विल प्रोवाइड यू द मैक्सिमम प्रोडक्ट्स इन द मिनिमम कॉस्ट। तो हम इनिशियली आपको काफी सारे प्रोडक्ट्स देंगे, और कॉस्ट वाइज बहुत ही मिनिमम कॉस्टिंग में होंगे। तो आपका जो स्कूल है, इनिशियली हम फोकस करते 30 स्टूडेंट्स और 50 स्टूडेंट्स पे। वी हैव डिफरेंट मॉडल्स। सो मैं जैसे आगे आती हूँ आपको मैं बताती हूँ उसके बारे में। सो उसके बाद जैसे हम लोग ने आपको प्रोडक्ट्स ऑफर करें, उसके बाद उनको पूरा कैसे अरेंज करना है, क्या इंटीरियर्स करना है, कहाँ पे क्या पेंटिंग आएगी, क्या आपको वॉल पे क्या करना है। अगेन हियर आई वुड से, जो पेंटिंग इंटीरियर्स जो पेंटिंग होती है, पेंटिंग कभी भी स्कूल्स में नहीं करानी चाहिए। वो उसमें केमिकल्स होते हैं जो कि बच्चों को जब ब्रीदिंग होती है तो बड़ी प्रॉब्लम होती है। दे लुक वेरी अट्रैक्टिव, बट हम जो लगवाते हैं वो पेंट नहीं होता है, दैट इज अ डिफरेंट डिजाइन, यू कैन से अ फ्लैक्स और एनी अदर थिंग, अ क्लॉथ मटेरियल। सो वी डोंट गो, बिकॉज अगर आपका रेंटेड प्रीमाइसेस है, आपने एक जगह पेंट करा लिया, तो आपके लिए वो वेस्ट हो गया, आपने जगह चेंज करी। सो आपके पास कोई दूसरा है जो दूसरी जगह पे हटाकर उसको दूसरी जगह लगा सकते हैं, तो दैट इज मच मोर बेनिफिशियल फॉर यू। सो वी अवॉइड पेंटिंग वॉल्स। यस, एक्सटीरियर्स में वी डेफिनेटली एडवाइज कि आप यू कैन गो फॉर पेंटिंग्स लाइक ऑल दोज ऑयल पेंटिंग्स। उसके बाद कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग डेवलप करवाते हैं। उसमें क्लासरूम्स कैसे मैनेज करना है, कैसे आपका एक्टिविटी रूम होना चाहिए, इवन आपका कैसे वेटिंग एरिया कैसा होना चाहिए, बिकॉज वेटिंग एरिया इज द फर्स्ट एरिया वेयर द विजिटर विजिट्स। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए। उसको आप कैसे बेस्ट बना सकते हैं, आप कितना भी अच्छा फर्नीचर लगा दें, कुछ भी लगा दें, बट
वहां पे और क्या चीजें होनी चाहिए, दैट वी विल गाइड यू, कि पेरेंट को लगे यस आई हैव कम टू द राइट प्लेस, एंड द राइट प्लेस इज लिटिल यूनिवर्स प्री स्कूल। एंड उसके अलावा कंप्लीट स्कूल खोलने से पहले लाइक प्री एंड पोस्ट सपोर्ट इज ऑलवेज देयर। एंड टीचर्स के लिए, टीचर्स अपॉइंट्स जो करते हैं, वी गाइड यू एंड वी टेक इंटरव्यूज ऑल्सो for teachers, and we have teachers orientation programs and training programs. Training program and orientation program में क्या फर्क है? Now let me tell you. Orientations जो training कुछ घंटों के लिए होती है and वो बार बार नहीं होती, but orientations जो होते हैं वो आपको हर बार कुछ नया सिखाते हैं। जो भी कुछ नया होता है वो हम ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स में लेकर आते हैं, और ट्रेनिंग्स भी हम करवाते हैं। And now I will come with this franchise fact, Model A. We have two models, Model A and Model B. Model A, you can say we have 50 number of students, and the costing is around 3.25 lakhs. And space requirement for this Model A is minimum 1800 square feet to 2500 square feet. And let me tell you that it's a no royalty model. हम कोई रॉयल्टी चार्ज नहीं करते हैं। दैट इज आपके जो बिजनेस के लिए है, ये बहुत ही सपोर्ट सिस्टम हो सकता है। जहाँ पे रॉयल्टी होती है वहां पे ग्रोथ नहीं होती है, तो हम लोगों को रॉयल्टी बिल्कुल भी नहीं है। एंड मॉडल बी जो है वहां पर जो है वो 30 स्टूडेंट्स के लिए है, एंड वहां पे जो एरिया रिक्वायर्ड है दैट इज 1200 to 1500 स्क्वायर फीट। एंड इसका मैं बताऊं रिटर्न ऑफ इन्वेस्ट, जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसका जो 30 स्टूडेंट्स वाला मॉडल बी है दैट इज कॉस्टिंग अराउंड 2.11 लाख। एंड ROI अगर मैं बोलूं इसमें तो 50% विल कम इन 12 to 15 months, बल्कि उससे पहले ही आ जाएगा, बिकॉज हमारे जो ये आफ्टर स्कूल एक्टिविटी क्लब्स हैं वो उनके रिजल्ट्स आपको बहुत अच्छे मिलने वाले हैं, बिकॉज वी आर गिविंग वेरी वेरी स्पेशल curriculum for each and every club. And now I'll let you know about the marketing support. Marketing support में जो सबसे बड़ी चीज होती है, ठीक है, एडवर्टाइजिंग इज द स्टार्टिंग थिंग। एडवर्टाइजिंग में होगा ही, व्हाट काइंड ऑफ एडवर्टाइजमेंट वी शुड गिव, क्या चीज क्लिक कर सकती है। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हाउ टू इंक्रीज एडमिशंस। एडमिशंस कैसे इंक्रीज करने, आपने स्कूल खोल लिया, आपने सब कुछ कर लिया, बट एडमिशंस को कैसे इंक्रीज करना है, तो वी हैव डिफरेंट वर्कशॉप्स फॉर दैट ऑल्सो, कि हमको एडमिशंस कैसे इंक्रीज करने हैं, हमारा ग्रोथ कैसे करनी है। एंड अगर आपको उसी स्कूल को अपग्रेड करना है टिल प्राइमरी लेवल और टिल K-12 लेवल, सो उसके लिए भी वी आर ऑलवेज रेडी विद यू। एंड वी विल, इफ यू वांट, इफ यू हैव अ पैशन, if you want to grow your school till primary level or till K-12 level, we have complete guidance for that also. And we have 360-degree support for you around the year and 24/7 hours. Now here one very important thing I would tell you, कि हम लोग जो फ्रेंचाइजी सिलेक्शन करते हैं वो उसमें हम लोग काफी सिलेक्टिव हैं, बिकॉज ये सिर्फ हमारा बिजनेस ही नहीं है, दिस इज माय पैशन। और मैं इस पैशन को उन्हीं के साथ शेयर करना चाहती हूँ जो खुद पैशनेट हैं एजुकेशन को बहुत हायर लेवल पे ले जाने के लिए। अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन की मैं बात कर रही हूँ, उसको हायर लेवल पे ले जाने के लिए, बिकॉज अभी जो हमारा अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन है उसमें बहुत सारी जगह पर हम लैक कर रहे हैं, जो कि मैं पहले आपको बता चुकी हूँ। तो उन्हीं सब लैकिंग फैक्टर्स को आप मेरे साथ ओवरकम करने के लिए रेडी हैं, तो यू आर मोस्ट वेलकम टू जॉइन अस। एंड वी हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग टीम ऑफ एक्सपर्ट्स, एजुकेटर्स and IIT alumni, and with the latest international curriculum. And जो बेसिक फैक्टर है जो मुझे चाहिए अपने फ्रेंचाइजी में, दैट इज पैशन, पैशन एंड पैशन फॉर एजुकेशन, फॉर अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन। बिकॉज हमने अर्ली ईयर्स डेवलप कर दिए तो ऑब्वियसली हमारा जो हायर लेवल पे जो स्कूल जाएंगे वो बहुत अच्छे जाएंगे।
एंड फर्स्ट जो एंड लास्ट थिंग जो होगी वो मेनली होता है ट्रस्ट एंड फेथ. आपको ट्रस्ट एंड फेथ डेवलप करना है, हमको आप में करना है, एंड यू हैव टू डेवलप ट्रस्ट एंड फेथ इन अस, बिकॉज हमारा जो एजुकेशन एक्सपीरियंस रहा है वो बहुत ही लंबी जर्नी है. तो उस जर्नी के हिसाब से definitely I would say that you can trust us, you can faith us. We are going to provide you the best of all from I'll say the globally best of all, not only India. I will talk, I will say globally best of all. Now हमारा जो एक अभी का जो प्रेजेंट सिनेरियो है उसमें अगर मैं जाऊं, अभी जो आप अपने लैपटॉप में जो देख रहे हैं स्क्रीन पर, दैट इज होम स्कूलिंग प्लान. सो राइट नाउ जो कोविड टाइम चल रहा है, एंड अभी हम ठीक है, अभी हमारा होमवर्क जो स्कूल ग्राउंड लेवल पे लेकर आने का है, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे लाने के लिए भी उसके साथ हमको 2-3 महीने चाहिए. तो हम डिसाइड करते हैं, हम फिर जगह ढूंढते हैं, उसको पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं, काफी चीजें स्टडी करते हैं, कहाँ पे हमको कौन सा एरिया होना चाहिए, एंड वहां पे ऑलरेडी कौन से स्कूल्स चल रहे हैं. तो इन सब होमवर्क के लिए वी नीड 3 to 4 months टाइम. सो टेक योर डिसीजन एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन इट. लिटिल यूनिवर्स इज विद यू, आई एम विद यू. सो अभी हमारा जो प्रोग्राम ये आप सामने देख रहे हैं, दैट इज फॉर नाउ. जब लॉकडाउन पीरियड चल रहा है, स्पेशली फॉर स्कूल्स, प्री स्कूल्स नहीं खुल पा रहे हैं, इवन प्राइमरी स्कूल्स भी नहीं खुल पा रहे हैं. तो अभी आप अपना बेस कैसे बना सकते हैं आने वाले आपको जो दिन है उसमें अपने स्कूल को लिए आपको ऑटोमेटिक ही अच्छी स्ट्रेंथ मिल जाएगी अगर आप इस प्रोग्राम में लिटिल यूनिवर्स होम स्कूलिंग को ऑप्ट करेंगे. लिटिल यूनिवर्स होम स्कूलिंग फ्रेंचाइज प्लान इज अ जीरो इन्वेस्टमेंट प्लान. So it's a very good news. Abhi already we are facing a lot of financial problems. So zero investment plan hai ye, and iska jo main beauty hai, jo main attraction hai, that is basically 100 out of 100%, I would say 60% is activities and 40% is academics. Because abhi jo bacche band ho chuke hain, jo apne ghar ke gate se bhi bahar nahi nikal pa rahe hain, unko agar हमने 60% ऑफ एक्टिविटीज दिया, उनको घर बैठे सारा, उनको फिजिकल, मेंटल, आईक्यू सारा हमने एक्टिविटीज दिया, और 40% एकेडमिक्स भी डेवलप किया, जो कि वो 2 साल से कुछ नहीं कर पा रहे हैं. कई पेरेंट्स ने उनको ऑनलाइन क्लासेस, कई स्कूल्स ऑनलाइन क्लासेस चला रहे हैं. आई रियली वंडर हाउ दे कैन रन ऑनलाइन प्री स्कूल. आई रियली वंडर, बिकॉज मेरे हिसाब से ऑनलाइन स्कूल नहीं करना चाहिए, स्पेशली बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए, प्री स्कूलर्स के लिए. उनको ये होम स्कूलिंग प्रोग्राम देना चाहिए. एंड होम स्कूलिंग प्रोग्राम में और ऑफ स्कूलिंग प्रोग्राम में या ऑनलाइन स्कूलिंग में क्या डिफरेंस है? ऑनलाइन स्कूलिंग, अगेन आई वुड से स्ट्रिक्ट नो फॉर प्री स्कूलर्स. नाउ कम्स होम स्कूलिंग एंड ऑफलाइन स्कूलिंग. ऑफलाइन अभी हो नहीं सकता है बिकॉज प्री स्कूल्स खुले नहीं है. सो the option is left now is the homeschooling factor. तो homeschooling fact में क्या है कि इसमें हम लोग बच्चों को हार्ड किट भी प्रोवाइड करते हैं. Let me tell you what all we provide kids and what all they get, because in my laptop there is some problem. So in our homeschooling program, we give hard copy curriculum which includes tutorial and workbooks for whole academic year, and this learning is based on collaborative learning. ये एक पॉइंट शायद मैंने आपको पहले हमारे करिकुलम में मैं मिस कर गई हूँ. We are into collaborative learning. Now let me explain you what is collaborative learning. Suppose एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल से मैं आपको बताती हूँ. लाइक हम सिखा रहे हैं स्कूल में A for apple. तो सिर्फ मोस्टली स्कूल्स में A for apple बोलते हैं, बट व्हाट डू यू मीन बाय कोलैबोरेटिव लर्निंग? कि अगर आप A for apple बच्चों को पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं, बोल रहे हैं, तो उस एप्पल के साथ आप और क्या चीजें रिलेट कर सकते हैं? एप्पल इज अ फ्रूट, एप्पल का शेप क्या है, एप्पल का कलर क्या है, एप्पल कहाँ से मिलता है, एप्पल सीडलेस होता है या विद सीड्स होता है, या एप्पल मतलब ये सारा जो चीजें हैं
मतलब एक ही टॉपिक पे आप कितने सारे चीजें इन्वॉल्व कर रहे हैं, दैट इज नोन एज कोलैबोरेटिव लर्निंग. So our whole curriculum is based on collaborative learning. So in our homeschooling kits, what we are giving, it's hard copy curriculum with all worksheets and tutorials are there. And this is for whole academic year. And video support is there with complete curriculum, rhyme, storytelling and activity. And video support जो है, वो videos जो है हम बच्चों के लिए नहीं देते हैं. We are giving it for parents. ये वीडियोस हम पेरेंट्स के लिए देते हैं ताकि पेरेंट्स उन वीडियोस को देख के जो भी एक्टिविटी हमारे करिकुलम से रिलेटेड है, चाहे वो राइटिंग एक्टिविटी हो, चाहे स्टोरी टेलिंग हो, चाहे राइमिंग एक्टिविटी हो, हर एक एक्टिविटी के लिए हमने स्मॉल वीडियोस बना रखे हैं और वो वीडियोस पेरेंट्स को देखने हैं. एंड दे हैव टू लर्न कि उनको बच्चों को कैसे कराना है, बिकॉज पेरेंट्स आर नॉट ट्रेन्ड टीचर्स. सो उन्हीं के लिए हमने वीडियोस बनाए हैं. एंड उन वीडियोस की हेल्प से दे कैन teach their child. So this way there is zero on screen time for kids. On screen time बिल्कुल zero है इसमें. And offline videos का जो support है वो parents की flexibility पे है. इसमें जो flexibility मैं ये बोलूंगी कि parent को आपको ये time fixation की जरूरत नहीं है, because जब online learning होती है तो एक time foundation हो जाती है and maybe उस time बच्चे का कुछ और mood है, वो नहीं पढ़ना चाहते हैं. तो यहाँ पर जो प्रोग्राम है हमारा होम स्कूलिंग प्रोग्राम, इसमें कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है, इवन पेरेंट्स के लिए भी नहीं और बच्चे के लिए भी नहीं है. एंड डे वाइज करिकुलम है, नॉट डेट वाइज. डेट वाइज एंड डे वाइज, अगेन द डिफरेंस. डे वाइज करिकुलम आर फ्लेक्सिबल. कभी बच्चा बीमार हो गया या कभी पेरेंट ऑक्यूपाइड हो गया, सो आप डे वाइज चलते जाएंगे, आपको डेट वाइज का प्रॉब्लम नहीं रहेगा. डेट वाइज में आपको उसी डेट में करना है, वो पॉइंट आपको बॉदर नहीं करेगा. सो इट्स अ डे वाइज प्लान, डे वाइज करिकुलम. एंड साथ में हम आपको पूरा डे वाइज करिकुलम के साथ पूरा मंथली प्लानर्स भी देते हैं विद सिस्टमैटिक लर्निंग प्लान. एंड पूरा जैसे असेसमेंट होता है वैसे ही हम लोग पूरा मार्कशीट्स देते हैं पूरा होल एकेडमिक ईयर का. एंड इसमें हम 4 कैप्सूल कोर्सेज हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट कोर्सेज जो हम करवाते हैं. इसमें ऑफलाइन स्कूलिंग, होम स्कूलिंग की बात कर रही हूँ मैं, जो जीरो इन्वेस्टमेंट प्लान है, उसमें हम लोग 4 कैप्सूल कोर्सेज देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें फर्स्ट कोर्स इज कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट, आर्ट क्राफ्ट एंड ओरिगेमी, फन विद नंबर्स, देन टेबल मैनर्स एंड डाइनिंग एटिकेट्स. यू सी, इस एज में अगर बच्चे को आपने प्रॉपर डाइनिंग एटिकेट्स, मैनर्स एंड उनको कम्युनिकेशन एंड एक्सेंट एंड उनका जो फोनिक स्ट्रक्चर है वो सब अगर इसी एज में आपने डेवलप कर दिया तो आपको आगे एक्स्ट्रा क्लासेस लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी. कई लोगों को जिनके प्री स्कूल्स में ये सब डेवलपमेंट नहीं हो पाते हैं, तो बाद में उनको जाके ये सब एक्स्ट्रा क्लासेस बच्चों को ज्वाइन करवानी पड़ती है. बट जो लिटिल यूनिवर्स का बच्चा है उनको आपको ऐसी कोई एक्स्ट्रा क्लासेस ज्वाइन नहीं करवानी पड़ेगी related to phonics, related to personality development, related to all other activities, क्योंकि उनको under one roof they are getting each and everything with Little Universe Preschool. So that's our homeschooling program is a full year program inclusive of all things I have already told you. And similarly, like a school, we have in our homeschooling program competitions and events also. Because वो हमेशा बच्चों के लिए एक excitement रहते हैं, for kids and parents both. They are very much excited to want their kids to be participated in various competitions and events. तो वो भी हम पूरा ऑर्गेनाइज करते रहते हैं टाइम टू टाइम. लाइक पोस्टर मेकिंग हो गया, लाइक फैंसी ड्रेस हो गया, जैसे भी एक स्कूल होता है. मैं अभी इसमें तो एक ब्रॉडर वे में और सिंपल वे में आपको बताती हूँ कि स्कूल की जगह जो लिटिल यूनिवर्स होम स्कूलिंग प्लान है उसमें स्कूल की जगह अभी घर होगा और टीचर की जगह पेरेंट होगा. और पेरेंट को हम लोग पूरा इतना हम लोग वेल इक्विप्ड कर देते हैं कि उनको जो अपने बच्चे हैं उनको पढ़ाने में या किसी भी तरीके का उनको एक्टिविटीज करवाने में, बिकॉज वी आर शेयरिंग देम ऑफलाइन वीडियोस, देयर इज नो प्रॉब्लम फॉर देम टू फेस लाइक बच्चों के साथ. देन वी हैव पेरेंटिंग सेशंस आल्सो.
अभी इन सेशंस की बहुत इंपॉर्टेंस है, बिकॉज पेरेंट्स आर हाईली कंफ्यूज्ड आई विल से. कुछ पेरेंट्स कुछ ऑनलाइन क्लासेस करा रहे हैं, डिफरेंट कोर्सेज के लिए डिफरेंट फीस स्ट्रक्चर देकर एंड वो ज्वाइन करवा रहे हैं. और दे आर, टू बी वेरी फ्रैंक एंड ऑनेस्ट, दे आर रियली, मेरे सामने ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स थे जिनका मैंने काउंसलिंग की है. दे आर लाइक, ना तो बच्चों को कुछ गेन हुआ है एंड पेरेंट्स का ऑलरेडी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है एंड उनके दे आर उनका पैसे भी चले गए एंड गेन भी कुछ नहीं हुआ. So why to go for this Little Universe homeschooling program? Because this इसमें आपका जो कॉस्टिंग आ रहा है, जो पेरेंट के लिए कॉस्टिंग आ रहा है पर डे, अगर हम 365 डेज को देखें तो पर डे जो कॉस्टिंग आ रहा है स्टार्टिंग इज ₹20 to 25 यू कैन से. कोई भी एक बस बोलूंगी एक रिक्शा पुलर भी अपने बच्चों को इतने में पढ़ा सकता है. और इतना कुछ हम लोग उनके लिए पूरा ईयर का प्लान दे रहे हैं. एंड दिस इज द बेस, दिस होम स्कूलिंग प्रोग्राम इज द बेस फॉर फ्यूचर अपकमिंग लिटिल यूनिवर्स प्री स्कूल ऑन फ्लोर. So get started with the homeschooling plan right now and definitely you can come on floor with the same curriculum. कोई change नहीं है, वही फिर होगा. घर की जगह लिटिल यूनिवर्स प्री स्कूल होगा and parent की जगह teacher होगा. So nothing will change. The curriculum will remain same. The book sets will remain same. Everything will remain same. And here we are giving them all facilities also, which I have already explained you. We have different activity clubs also, especially for homeschooling के लिए जो हमने किया है, उसमें हमने 1.5 से 2.5 ईयर के लिए क्लब है हमारा बैग के नाम से. Then 2.5 to 4 years, that is फ्लडी के नाम से है. Then TAD club is for ages 4 to 5.5, and we have bundle this club for 5.5 till age of 7. So ये सारा कुछ आपको इसमें मिल रहा है. प्लस यू विल बी गेटिंग एक्टिविटी बॉक्स ऑल्सो. इसमें आपको कुछ भी बच्चे को आर्ट एंड क्राफ्ट करवाना है, कुछ भी पेंटिंग कराना है, यू नीड नॉट टू हैव टू गो टू द मार्केट टू परचेज एनीथिंग. एवरीथिंग विल बी देयर इन योर किट. So activity box will be there and Android app is also there. And that app is only parents have to look after that app for your day-wise assessment and day-wise uploadings of worksheets and homeworks and planners. And then we are giving them 80 plus activities round the year. And उन सब activities के सब चीजों के videos हैं. So I think I have crossed the time limit. So Ashok ji and all the participants, I really thanks a lot कि आपने इतना time spare किया for Little Universe Preschool. And in future, I want that you should be a part of our team of Little Universe. So most welcome to the Little Universe team. And thank you so much for attending this webinar. And you can connect